ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ TDS। TDS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੈਕਸ डिडक्टेड एट सोर्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ TDS ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, TDS ਮੀਨਸ टैक्स इज़ डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द पेयर। कहते कि ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ A ਪਰਸਨ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ B ਪਰਸਨ ਹੈ। A ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ B ਨੂੰ। B ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਰਿਸੀਵਰ, ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ A ਤੋਂ। A ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ 10,000 ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ 10,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਟੈਕਸ B ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੈਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ B ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟਿਡ ਐਟ ਸੋਰਸ, ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ TDS। ਹੁਣ TDS ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਵੇਡ ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਇਵੇਡ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟਰਮਸ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇਵੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, B ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ B ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪੂਰੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ A ਨੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ TDS ਕੱਟੇਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ TDS ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਵਰਡ ਟਰਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ TDS ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ TDS ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਸਮਵਨ ਕੱਟਸ TDS ਫਰੋਮ ਯੂਅਰ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, TDS ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ TDS ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ TDS ਕੱਟ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ITR ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। TDS ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੈਕਸ। ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਗੇ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਡ ਔਨ ਯੂਰ ਬਿਹਾਫ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ TDS ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ TDS ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਅਰ ਫਾਈਨਲ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ TDS ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, A ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ B ਨੂੰ 10,000 ਦੀ। A ਨੇ 10,000 ਦਾ 1% ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 1% TDS ਕੱਟਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 10,000 ਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ 1% TDS ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ 1% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 100 ਰੁਪਏ। 100 ਰੁਪਏ TDS ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? B ਕੋਲ 9900 ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ B ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 100 ਰੁਪਏ TDS ਕੱਟ ਕੇ A ਨੇ B ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ B ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ 5,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ 100 ਰੁਪਏ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 4900 ਪੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੀ B ਦਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ TDS ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੂ ਡਿਡਕਟਸ TDS ਕੱਟੇਗਾ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਡਕਟਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਡਕਟੀ।
जिस पर्सन ने पेमेंट करनी है वो डिडक्टर है, जिस बंदे ਨੂੰ पेमेंट मिलनी है वो डिडक्टी है। एग्जाम्पल मान लैंदे हाँ तुहाडे एग्जाम के रिलेटिड ही PSTCL ने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया जिन्होंने उन्हें पेमेंट करनी सीगी 1 लाख की। ठीक है, हुण इस एग्जाम्पल के PSTCL की हो जाएगा डिडक्टर, इन्हां ने हुण TDS कट करके पेमेंट करनी है कॉन्ट्रैक्टी नूं, कॉन्ट्रैक्टर की हो जाएगा डिडक्टी। ठीक है, नैक्सट आ जाओ कि वैन इज़ TDS डिडक्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि TDS कटिया कदों जाएगा। देखो TDS इज़ डिडक्टेड ऑन पेमेंट। ऑन पेमेंट का मतलब जो लैजर दे विच एंट्री पा गई उदों, या फिर जो एक्चुअल दे विच अमाउंट मिलिया रिसिप्टेंट नूं। ठीक है, एक्चुअल दे विच जो पेमेंट हो गई उदों ਜਿਹੜੇ भी दोनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ भी चीज़ जल्दी होएगी विच एवर इज़ अर्लीयर उस उदों आप TDS कट देंगे, या तो जो अकाउंट के विच एंट्री पहला पैगी या एक्चुअल दे विच पेमेंट पहला हो गई। दोनों के विचों ਜਿਹੜੀ चीज़ भी पहला हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस टाइम ਅਸੀਂ डिडक्ट करना है TDS। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ये चीज़ क्लीयर है। डायरैक्ट इत्थों क्वेश्चन आता है कि TDS कदों डिडक्ट किया जाता है। एक कंडीशन है कि पेमेंट और अमाउंट एक्चुअल रिसीव्ड बाय द रिसिप्टेंट दोनों के विचों ਜਿਹੜਾ भी जल्दी होएगा विच एवर इज़ अर्लीयर उदों आप TDS कटना है। नैक्सट आ जाओ, पेमेंट बन गई मतलब लैजर दे विच एंट्री हो गई या एक्चुअल पैसा मिल गया रिसीवर नूं, जो भी इन्हां दोनों के विचों जो भी पहला होएगा उदों आप TDS कट कर देंगे। नैक्सट देखो, ऑन विच पेमेंट इज़ TDS डिडक्टेड। किहड़ी पेमेंट्स के उत्ते TDS डिडक्ट होंदा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तुहाडे एग्जाम लई नीचे दिते गए जिहड़ी कैटेगरीज आ वो इनफ है, तुसीं वो याद रखनी है। पहला है सैलरी। इंप्लॉयर ने इंप्लॉय नूं सैलरी देनी है तो इंप्लॉयर वालों वो की है पेमेंट है, वो पेमेंट रिसीव किन्ने करनी है इंप्लॉय ने करनी है। तो इंप्लॉयर है जो वो TDS कटेगा टैक्स स्लैब के बेसिस के उत्ते। ये चीज़ याद रखना, सैलरी का TDS किद्दां कटिया जाएगा टैक्स स्लैब के बेसिस के उत्ते। नैक्सट है इंट्रस्ट, यदा सैक्शन याद रखना 194A। जो भी बैंक ने FD उत्ते इंट्रस्ट पे करना है या इंट्रस्ट ऑन लोन असी पे करना है, कोई भी इंट्रस्ट वो इंट्रस्ट भी TDS माइनस करके ही पे किया जाता है। नैक्सट है कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर हो गया चाहे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हो गया, इन्हां दे लई भी जो पेमेंट आप करनी है TDS माइनस होएगा। ये उत्ते इहदा सैक्शन याद कर लेना, सैक्शन 194C। रेंट, जो भी रेंट है बिल्डिंग लैंड और मशीनरी का वो भी अगर पे करना है तो TDS माइनस करके पे किया जाएगा। यदा सैक्शन है 194I। ठीक है, ये 1 नहीं है, ये I है। नैक्सट है कोई भी प्रोफैशनल एंड टैक्नीकल फीस है वो उत्ते भी आप TDS माइनस करांगे। यदा सैक्शन याद रख लेना 194J। कोई भी कमीशन ब्रोकरेज है सैक्शन 194H, वो भी TDS माइनस किया जाएगा। हुण नैक्सट क्वेश्चन अराइज होंदा है कि जो TDS कट लिया, ठीक है, डिडक्शन हो गई, उस तो बाद की होएगा। डिडक्टर एग्जाम्पल मान लैंदे PSTCL। हुण PSTCL डिडक्टर है, उन्हें TDS माइनस करके कॉन्ट्रैक्टर नूं पेमेंट करनी है। तो उन्होंने हुण की करना, मस्ट मतलब ये जरूरी चीज़ां ने। पहला तो TDS डिपोजिट करवाना है सरकार नूं, ठीक है। दूजा है फाइल करना है TDS रिटर्न, या इनू आप करते हैं क्वार्टरली मतलब साल दे विच 4 बार। देखो क्वार्टर्स किन्ने हुंदे साल दे विच, एक क्वार्टर हुंदा 3 महीनों का, जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आ हुंदे क्वार्टर्स। ठीक है, जो आप साल नूं 4 हिस्सों के डिवाइड कर देंगे वो क्वार्टर होएगा, और एक क्वार्टर के 3 महीने होंगे। 3 महीनों के बाद ही आप TDS जी रिटर्न है वो फाइल करनी होंगी है। ठीक है, तो इनू क्वार्टरली किया जाता है। तो सब तो जरूरी चीज़ जो TDS उन्होंने पे करता वह सर्टिफिकेट डिडक्टी नूं मिल जाना चाहिए। डिडक्टी कौन होएगा, जिन्हों रिसीव हुई है पेमेंट। ठीक है, हुण देखो वट इफ TDS इज़ नॉट डिडक्टेड। आ इंपॉर्टेंट चीज़ा है कि जे मैं पहला दस रही हाँ कि जे तो डिडक्शन हो गई, डिडक्शन तो बाद है जिहड़ा डिडक्टर वो की करेगा। पहला तो गवर्नमेंट नूं पैसा जमा कराएगा, दूजा TDS फाइल करेगा क्वार्टरली, तीजा वो सर्टिफिकेट है वो डिडक्टी नूं डिपोजिट कराएगा एज अ प्रूफ कि मैं तेरे बिहाफ ते TDS कट दिता है। ठीक है, अगे आ जाओ कि अगर TDS ना कटिया जाए या डिडक्शन ना होवे ਤਾਂ ਕੀ चीज़ां हो सकती हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ याद रखना है, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ इंट्रस्ट लग सकता है अगर ਤੁਸੀਂ एज अ डिडक्टर ਤੁਸੀਂ TDS नहीं कटिया। ठीक है, पेनल्टी लगेगी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ाया ਸੀ ना अलाउड एक्सपेंसिस, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ITR फाइल करोगे तो उदों थानू कुछ एग्जाम्पशन मिलेगी एक्सपेंसिस माइनस करने वास्ते, ताकि थोड़ा प्रॉफिट घट जाए। प्रॉफिट घट जाए तो थानू टैक्स भी घट पे करना पवे, है ना। करवाए से अलॉड और डिसअलॉड, तो वो जोड़े अलॉड एक्सपेंसिस है ना उन्होंने उत्ते थानू डिसअलॉयंस मिल जाएगी, मतलब तुसी वो माइनस नहीं कर सकोगे। एज अ पनिशमेंट थानू ये तीनों चीज़ां दित्तियां जाऊगियां। नैक्सट है इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो तुसी अपने एग्जाम वास्ते डायरैक्टली याद रखने हैं। पहला तो ये समझो डिडक्टिड मतलब TDS डिडक्ट किहदे द्वारा किया जाएगा, पेयर के द्वारा। पेमेंट या क्रेडिट दोनों के विचों जिहड़ी चीज़ पहला होएगी उदों TDS घट दिता जाएगा। TDS सर्टिफिकेट दो फॉर्म है मेनली, पहला फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A। फॉर्म 16 दे विच की है, यह इंप्लॉयर ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है सैलरी वास्ते। याद रखना सैलरी वास्ते किहड़ा फॉर्म यूज़ होंदा TDS ला, फॉर्म 16। तो जो नॉन सैलरी एक्सपेंसिस है, नॉन सैलरी पेमेंट्स है, जिदा बैंक और कंपनीज ने जो भी पेमेंट करनी है वो जिहड़ा TDS वाला सर्टिफिकेट है वो 16A है। नैक्सट आ जाओ, ये मैं डिटेल दे विच बहुत सारे फॉर्म अगे भी ऐड किए हैं क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल वन लाइनर लिए इन्ना याद रखना है, TDS सर्टिफिकेट दे विच दो सर्टिफिकेट्स ने, फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A। फॉर्म 16 इंप्लॉयर वास्ते है, इंप्लॉयर देगा। फॉर्म 16A बैंक कंपनीज और जो नॉन सैलरी पेमेंट्स होंगी उन्होंने वास्ते होंगे। सैलरी का TDS है किहड़े बेसिस से होंदा है, स्लैब्स बेसिस से। कॉन्ट्रैक्टर TDS सैक्शन 194C, रेंट वाला I, इंट्रस्ट TDS 194A, प्रोफैशनल TDS 194G। इन्हां दे तुसीं सिर्फ सैक्शनस याद रखने। नैक्सट है नाइन्थ पॉइंट, इफ TDS नॉट डिपॉजिटेड तो थानू पैनल्टीज़ लगूगियाँ। TDS गिव्स क्रेडिट टू द रिसीवर, TDS का जिहड़ा क्रेडिट है वो किनू दिता जाएगा, रिसीवर नू। हुण आ जाओ सर्टिफिकेट वाली टर्म आई। हुण ये सर्टिफिकेट की है, TDS सर्टिफिकेट इज़ अ प्रूफ। एक ही है, एक प्रूफ है, सबूत है कि TDS डिडक्टेड हो चुका है थोड़ी इनकम दे विचों और सरकार नू डिपॉजिट हो चुका है। विदाउट TDS सर्टिफिकेट यू कैन नॉट क्लेम TDS करैक्टली। अगर तुहानू TDS सर्टिफिकेट नहीं मिलिया डिडक्टर वालों तो तुसी सरकार नू अपनी ITR दे विचों क्लेम नहीं कर सकते कि तुहानू TDS क्रेडिट मिले, ठीक है। जब तक थोड़े को प्रूफ नहीं होगा तुसी वो चीज़ क्लेम नहीं कर सकते। नैक्सट आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़, टाइप्स ऑफ TDS सर्टिफिकेट। थोड़े तुसी दो तरीके दे मेनली याद रखने हैं। पहला फॉर्म 16, यह किदे वास्ते होंदा है, सैलरी वास्ते। बनांदा कौन है, इंप्लॉयर। गिवन किनू मतलब दिता किनू जाता है, इंप्लॉय नू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, सैलरी की डिटेल होंगी है, TDS मंथ वाइज कटिया गया है या क्वार्टरली ये दसिया जाता है, पैन और टैन की डिटेल्स होंगी है, टैक्स कलैक्शन की डिटेल होंगी है। नैक्सट है फॉर्म 16A, TDS ऑन नॉन सैलरी इनकम। सिर्फ एग्जाम के इन्ना ही पूछा जाता है कि 16 किहदे वास्ते है, 16A किहदे वास्ते है। तो 16A किहदे वास्ते है, नॉन सैलरी इनकम वास्ते। तो जिहड़ा TDS 16 फॉर्म 16 है वो TDS ऑन सैलरी वास्ते है। ए इशूड फॉर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट सैक्शन याद रखना, रेंट सैक्शन याद रखना है, प्रोफैशनल फी का सैक्शन भी याद रखना है, इंट्रस्ट पेमेंट एंड कमीशन एंड ब्रोकरेज, आ सारे सैक्शन याद रखने। ये मैं वही ऐड किए जो इंपॉर्टेंट ने। नैक्सट है डिफरेंस, इन्होंने दोनों के विच डिफरेंस की है, थोड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिए तुसी की चीज़ां याद रखनी। इस साइड है फीचर, इस साइड है फॉर्म 16, इस 16A। ए किहदे वास्ते, सैलरी TDS वास्ते, ए नॉन सैलरी TDS वास्ते। ए इशू कौन करता है, इंप्लॉयर। ए कौन करता है, बैंक कंपनीज या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इन्हां दी फ्रिक्वेंसी मतलब ये कदों कदों बनाए जाते हैं। ये एनुअली बनते हैं मतलब साल दे विच एक बार। ये क्वार्टरली बनते हैं साल दे विच 4 बार। फॉर्म 16A किद्दां बनते हैं, साल दे विच 4 बार। इनकलूड्स सैलरी का स्ट्रक्चर, ये विच पेमेंट डिटेल्स। सम अदर TDS रिलेटेड फॉर्म तुसी जो याद रखने हैं, पहला है फॉर्म 26AS। ये केड़ा फॉर्म नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, याद रखना। ये कोई फॉर्म या सर्टिफिकेट नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिहदे विच सारे दे सारे TDS क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन होंदी है जो थोड़े पैन दे विच क्रेडिट होए ने, ठीक है। नैक्सट है ये अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है, इनकम टैक्स पोर्टल के उत्ते मिल जाता होंदा है। नैक्सट है फॉर्म 24Q, इनका नाम है इंप्लॉयर रिटर्न। ये इंप्लॉयर यूज़ करता है जो उन्होंने TDS रिटर्न फाइल करना है सैलरी वास्ते, ठीक है, याद रखना। फिर आता है 26Q फॉर्म, जिहदे विच यूज टू फाइल TDS रिटर्न फॉर नॉन सैलरी पेमेंट्स। देखो फॉर्म 16 किहदे वास्ते है, सैलरी वास्ते। फॉर्म 16A किहदे वास्ते है, नॉन सैलरी वास्ते, ठीक है, TDS जो तो कटना है। तो फॉर्म 24Q किहदे वास्ते है,
TDS रिटर्न वास्ते पर सैलरी, और 26 क्यों कि वास्ते TDS रिटर्न वास्ते है पर नॉन सैलरी पेमेंट्स वास्ते। याद रखनी है ये चीज़ा, ठीक है। दैन लास्ट फॉर्म आंदा तुहाडे कोल फॉर्म 27Q, जिहदे विच TDS रिटर्न फाइल की जाती है फॉर पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स। नॉन रेजिडेंट्स नूं पेमेंट करन वास्ते किहड़ा फॉर्म यूज़ किया जाता है? फॉर्म 27Q TDS रिटर्न फाइल करन वास्ते। सो ये सी लास्ट पेज अपनी अज की क्लास का। आई होप तुहानूं सारे फॉर्म क्लीयर है, जिन्ना ऐड किया सिर्फ उन्ना बहुत इनफ है, मोर दैन इनफ है, ठीक है। इस तो इलावा तुसीं इस चैप्टर दे विचों कुछ नहीं करना। नैक्सट आपां चैप्टर शुरू करांगे एडवांस टैक्स, ਉਹਦੇ रिलेटिड की प्रोविजनस ने, सैक्शनस ने, सारिया चीज़ां आपां देखांगे। आई होप तुहानूं अज की क्लास वधिया लगी होए। जे तुहानूं क्लास वधिया लगी होए, चैनल नूं सबसक्राइब करना, वीडियो नूं वध तो वध लाइक एंड शेयर जरूर करना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर रेगूलर अपडेट्स। प्लस अपना फीडबैक मैनू ज़रूर दिया करो कमेंट सैक्शन दे विच। और अगर तुसी चाहो लैक्चर्स तुहानूं वधिया लग रहे हो तो कमेंट सैक्शन नूं स्वाइप करके तुहानूं हाइप द वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, तुसी वो भी कर सकते हो। मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच नैक्सट टॉपिक दे नाल, जिहदे विच आपां करांगे एडवांस टैक्स नूं कवर। तो थैंक यू सो मच।